नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6 कोर्स पेडागोगी ऑफ civics. We will discuss both language, first in English and after Hindi. Today our session name is Evaluation in Civics Teaching Part 2, Meaning and Characteristics of Evaluation. First is Introduction. Evaluation has a distinct place in the teaching process. As a traditional examination monopoly on the teaching process has been in the beginning, the success of the students has been the only criterion test for the progress of the students to the teaching level of the teachers and parents. Meaning of evaluation. Evaluation is the method by which predetermined objectives and the extent of achievement of goals are determined. Assessment is a method by which comparisons are made between the assessment of learning and the stated objectives. The scrutiny of the values earned by the evaluation comes in the light of the predetermined objectives. Characteristics or features of evaluation. First is student focus. Objectives are set as behavioral changes in students' behavior, whose achievement is checked by evaluation. Hence, assessment is ultimately student-centered. Second is analogous synthetic. In the evaluation, the previously determined objectives are analyzed and divided into specialties. Specific conditions are selected by checking them with equipment. After verification, the collected evidence is summarized. Hence, assessment is an analytical and analytical process. Third is integral part of teaching process. Interrelated with teaching objectives and teaching learning situations make the teaching process effective. Fourth is generality. The field of assessment is wide, not only knowledgeable but because of examining the achievements in the form of desired behavioral changes for all purpose related to knowledge, interest, growth and skills. Fifth is measurement and pricing procedure. By measurement, the amount of level
of students' cognitive and practical achievement is determined in numbers and effective such as interest and accretion aspects of qualitative pricing. 6 is continuous process. Due to the wide scope of evaluation and being part of the teaching process, it is an ongoing process with education. 7th is diagnostic. Through assessment, the student's knowledge of weak sides is diagnosed, based on which remedial teaching is conducted to overcome them. 8th and last is evaluation objective focused. Evaluation is done to find the extent of achievement of the started objectives. Therefore, these objectives are focused. डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। लेट्स सी इन हिंदी। आज का जो सेशन है उसका नाम है नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन, भाग द्वितीय, मूल्यांकन का अर्थ और विशेषताएं। ठीक है, अर्थ और लक्षण भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना की। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक विशेष स्थान होता है। परंपरागत परीक्षा के रूप में प्रारंभ में ही शिक्षण प्रक्रिया पर एकाधिकार बना हुआ है। विद्यार्थियों की सफलता शिक्षकों के शिक्षण स्तर तथा अभिभावकों और जनसाधारण को विद्यालयों की प्रगति का एकमात्र मापदंड परीक्षा ही माना गया है। मूल्यांकन अब शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनकर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा का निर्धारण करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यांकन तथा निर्दिष्ट उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। मूल्यांकन के द्वारा अर्जित मूल्यों की जांच पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के प्रकाश में आती है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषता या लक्षण की। सबसे पहला है इनमें पॉइंट, जिसमें सबसे पहला विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड। उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहारगत विशेष परिवर्तनों के रूप में निर्धारित किए जाते हैं, जिनकी उपलब्धि की जांच मूल्यांकन से की जाती है। अतः मूल्यांकन अंततः विद्यार्थी केंद्रित है। दूसरा विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल। मूल्यांकन में पहले निर्धारित उद्देश्यों का विश्लेषण कर विशिष्टियों में विभाजित किया जाता है। विशिष्टियों के अनुकूल परिस्थितियों का उपकरणों से चुनाव कर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद एकत्रित साक्ष्यों का संश्लेषण किया जाता है। अतः मूल्यांकन विश्लेषणात्मक तथा संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना, मेन पार्ट एट टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण उद्देश्य एवं शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से अंतर संबंधित हो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। चौथा है व्यापकता, ब्रॉडनेस। केवल ज्ञानात्मक ही नहीं बल्कि अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल संबंधी सभी उद्देश्यों की वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में होने वाली उपलब्धियों की परख करने के कारण मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। पांचवा है मापन एवं मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, मेजरमेंट एंड वैल्यूइंग प्रोसेस। मापन द्वारा विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उपलब्धि की मात्रा या स्तर संख्या अथवा अंकों में निर्धारित किया जाता है। भावात्मक जैसे अभिरुचि और अभिवृत्ति पक्ष का गुणात्मक मूल्य निर्धारण किया जाता है।
अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, 6th पॉइंट, अनवरत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होने व शिक्षण प्रक्रिया का अंग होने के कारण यह शिक्षण के साथ लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला है निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के दुर्बल पक्षों का ज्ञान अर्थात निदान होता है, जिसके आधार पर उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। और अगला पॉइंट है उद्देश्य केंद्रित, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। मूल्यांकन निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि की सीमा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अतः ये उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। ये जो सेशन है वो 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन द्वारा तैयार किया गया है, और आप आगे से आगे वीडियोस को देखते रहें, जिससे जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाए। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।